Yes, good morning, students. As you know that we are doing chapter number 9, which is differential equation. In previous classes, we had done the order and degree of differential equation. After that, particular and general solution of differential equation, and then formation of differential equation. And in previous class, we had done the solution of differential equation first method, using first method, that was variable separable. So we had done all the examples of variable separable, and I had given you the exercise of related to that, those examples, and doubts of exercise related to those examples I will take in next class. In this class I am continuing with the second type of differential equation, solution of differential equation, that is homogeneous differential equation. So let us see what is homogeneous differential equation. तो homogeneous differential equation क्या है? A function f of x y is said to be a homogeneous differential equation of degree n if lambda f of lambda x lambda y is lambda to the power n f of x y for any non-zero constant lambda. ठीक है, where n is whole number, right? तो if any equation which can be written in the form of f of lambda x lambda y is equal to lambda to the power n f of x y, so that is known as homogeneous differential equation of degree n, right? Now consider these examples. Let us see first and second and third and fourth. There are 4 examples. Let us see how whether these functions are homogeneous or not, right? तो चेक करते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट केस है, जैसे फर्स्ट है कि f of f1 xy, तो f of xy is equal to y square plus 2xy. f of xy stands for the function in terms of x and y, right? तो x और y के टर्म में है. तो अब लैम्डा x लैम्डा y निकालो, f of 1 लैम्डा x लैम्डा y, यानी कि रिप्लेस x बाय लैम्डा x और y बाय लैम्डा y. तो प्लस 2 लैम्डा x लैम्डा y. तो इसमें से अगर हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज y स्क्वायर प्लस 2xy. तो ये तो f of xy आ गया, दैट इज लैम्डा स्क्वायर f of 1 xy. देखो ये पूरा का पूरा ये आ गया ना, ठीक है. तो f of 1 लैम्डा x लैम्डा y इसका डिग्री. तो देखो हमने ये जो है इस फॉर्म में आ गया, तो दैट मीन्स दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. तो हेंस इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. तो लेट अस सी नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट को देखते हैं. इट इज दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. It is homogeneous differential equation of degree 2. अब देखते हैं सेकंड पार्ट में देखते हैं. तो सेकंड पार्ट इज, व्हाट इज सेकंड पार्ट? चलो पहले इसको क्लियर कर देते हैं. सेकंड part, that is, what is this? Second part is f2 lambda xy, lambda 2 f2 xy, that is given by 2x minus 3y. तो let us see f2 lambda x lambda y, that is 2 lambda x minus 3 lambda y. तो lambda और 2x माइनस 3y, और ये हो जाएगा लैम्डा f2 xy. ठीक है. तो इसमें क्या हो गया, ये भी इस फॉर्म में आ गया, राइट? तो दिस इज, यस इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. डिग्री 1. फिर आते हैं हम f3 पे.
थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस, थर्ड इज f3 x, y is equal to cos y upon x। ठीक है, तो f3 lambda x lambda y that can be written as cos of lambda y upon lambda x, ये भी कट गया, तो ये क्या हो जाएगा cos of y upon x, और इसको हम lambda to the power 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो yes it is again in this form, तो so it is, yes it is homogeneous differential equation of degree 0। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं हम। लास्ट पार्ट, व्हाट इज लास्ट पार्ट? लास्ट पार्ट इज फोर्थ। साइन एक्स प्लस कॉस वाई, तो f4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू साइन लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई। अब देखो, आप इसमें से लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इसको। क्लियर? तो दिस इज, इट इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एफ ऑफ एक्स वाई, तो सो इट इज नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये चेक करने का है आपको कि कैसे आप चेक करेंगे कि कोई भी हमारे पास जो फंक्शन है वेदर दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, राइट। तो अब चलते हैं हम कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, लेट अस सी। Now solution of homogeneous differential equation कैसे हम सॉल्व करते हैं, लेट अस सी वन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 15। क्या है 15th एग्जांपल? शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो क्वेश्चन इज शो दैट दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। अब इसको हमने सॉल्व करना है, बट पहले तो इसने कहा शो दैट, तो हमें इसको पहले शो करना पड़ेगा कि वेदर दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, होमोजेनियस और नॉट। तो dy बाई डी एक्स इज x प्लस 2y अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो लेट f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो therefore अब let us check कि whether this is homogeneous or not। तो f of lambda x lambda y, this can be written as lambda x plus 2 lambda y upon lambda x minus lambda y, or it can be written as lambda take is common, x plus 2y upon lambda take is common again, x minus y, or it can be written as lambda to the power 0 f of xy, this is f of xy। So therefore it is homogeneous differential equation of degree 0।
डिग्री 0, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहले तो इसमें क्वेश्चन था कि शो दैट दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका आपके पास वर्किंग रूल है कि लेट वेरिएबल सेपरेबल बनाने का मेथड होता है हमारे पास, तो लेट y इज इक्वल टू बी एक्स। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये आपने वर्किंग रूल है कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे या कुछ भी वी टी वगैरह कुछ भी पुट कर दो। उसका पर्पज ये है कि हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मतलब सॉल्यूशन इस फॉर्म में, इस तरह का ये फॉर्म बनाना चाहते हैं जिससे कि वो सॉल्व हो जाए। अब सॉल्व हो जाए क्या, पहले प्रीवियस हमने क्या किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल जो हमने सॉल्व किया था, तो इसको भी हम वेरिएबल सेपरेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनेगा देखो, तो उसका वर्किंग रूल है कि y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो v का dv अपॉन dx हो गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx। अब इसमें पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट में क्या पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो ये पुट कर दो और जहां पर y है वहां vx पुट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे आप, vx अपॉन x माइनस vx। x कॉमन लेके काट दो, x कॉमन लेके काटेंगे तो 1 प्लस 2b अपॉन 1 माइनस v हो गया। ठीक है, अब हम वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं, इस v को उधर ले जाओ, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v और माइनस v। ठीक है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, yes it is x into dv upon dx is equal to 1 minus v take as LCM, so this can be written as 1 plus 2v or minus v plus v square, right, by taking 1 by v as LCM। तो x into dv upon dx is equal to ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। अब इसको वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू ये उधर जाके dx अपॉन x, और साथ में हमने इंटीग्रेशन भी कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये तो आपके पास, इसको तो ऐसे ले दो, इसको i ले लेते हैं और दैट इज ये हो जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस c, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। अब हम i को इंटीग्रेट करते हैं, नाउ i इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन देखेंगे आप तो ये कौन से फॉर्म से होगा, दैट वाज लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपने देखा था ना कि लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास क्या था कि लेट लेट 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी वी, और जिसमें x था तो हम डी बाई डी एक्स लिखते थे, तो यहाँ पे v है तो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 एंड प्लस v, या 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2v प्लस 1 एंड प्लस v। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, इंटीग्रेशन पूरा वही आ गया जो आपने पहले किया है। तो नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। पहले मैं कर रहा हूं यहां पर v का कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो इधर है -1 और उधर आ जाएगा 2a, तो इससे a इज इक्वल टू -हाफ आ गया। एंड फिर करेंगे हम किसका, कांस्टेंट का
करेंगे तो इधर कांस्टेंट का लेफ्ट साइड में क्या है 1, उधर क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो a की वैल्यू हाफ रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 तो 3/2, तो b इज 3/2। a की वैल्यू माइनस हाफ पुट कर देंगे यहाँ पर, तो b 3/2 आ गया। a माइनस 1/2 एंड b 3/2। ठीक है, तो अब इसमें पुट करो सेकंड में, फ्रॉम सेकंड वी गेट from second that is 1 minus v is equal to a is minus half 2v plus 1 and plus b के लिए 3/2। तो इंटीग्रेशन करना हमने नाउ I is equal to that was 1 minus v upon v square plus v plus 1 dv। इसकी वैल्यू रख दो, 1 minus v की वैल्यू ये रख दिया हमने, that is minus half 2v plus 1 प्लस 3/2 ओवर बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 dv। ये पहला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा लेंदी है, तो अभी तब लेंदी है, बट और क्वेश्चन जो है वो सिंपल होंगे, थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन, बाकी सब सेम ही है। यस इट वाज ये है। तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज, इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के लिए क्या हो जाएगा माइनस हाफ 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 dv एंड प्लस 3/2 dv अपॉन दैट वाज dv ना v स्क्वायर प्लस b प्लस 1। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया v स्क्वायर प्लस v, तो इस लॉग ऑफ दिस इज माइनस दैट इज I ना माइनस हाफ log of v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। ठीक है, प्लस 3/2, और ये आपके पास किससे होगा, कौन से मेथड से होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो v स्क्वायर प्लस v प्लस इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, v के कोफिशिएंट का, v का कोफिशिएंट 1 है, इसका हाफ 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। 1/4 जो आपने ऐड किया और उसी को 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो बन गया हमारा सेम वही माइनस हाफ लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 एंड प्लस 3/2। इसके करेंगे तो दैट इज इट बिकम्स b प्लस 1/2 टू द स्क्वायर, और दैट इज 4 माइनस 1 3 रूट 3/2 का स्क्वायर। तो दिस इज सेम एज इट इज, और प्लस 3/2 इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/2a 2a लॉग सॉरी 1/2a tan इनवर्स x 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा this can be written as minus half this was I log of b square plus b plus 1। इस 2 से तो ये वाला 2 कट गया, इससे √3 टाइम्स कट गया, तो √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। अब क्या करना होता है, देखो क्वेश्चन हमारे पास x और y के टर्म में था, तो हम इसमें x और y के टर्म में रख देते हैं। मतलब देखो y इक्वल टू हमारे पास था vx, तो इससे हमारे पास v की जगह क्या आ जाएगा y अपॉन x। स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था जो, उसी को हम यूज करते हैं। तो हाफ लॉग y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस √3 tan इनवर्स 2y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। तो दिस कैन बी रिटन एज, तो उसमें रख दो फ्रॉम फर्स्ट दैट वाज लेफ्ट साइड में क्या था इसका, लेफ्ट साइड में
आई था ना, तो फ्रॉम फर्स्ट ये था हमारे पास i इजकल टू log x प्लस सी, और i के लिए तो हमने ये लिख दिया, तो माइनस हाफ लॉग एलसीएम ले लो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3, और प्लस c तो उधर है ही हमारे पास, इजकल टू log x प्लस c. तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल अगेन. तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल. तो हमने क्या करना होता है बेसिकली, इसमें क्या है कि y इजकल टू, पहले हमें शो करना होता है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर है तो y इजकल टू v एक्सपोर्ट करो, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल करो, और उसके बाद इंटीग्रेशन हमारे पास कंप्लीट है. देन तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल you have to do exercise 9.5 homework. 9.5 question number 1 to 6. इसके बाद वाले एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लियर बाद में बताऊंगा, फिर उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे. तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास. We will meet next class in live class. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.